dear students, welcome to business studies class. Okay, so in last class we have started this ninth chapter, that is the financial management. In the last class I explained the thing about what is in business finance, what is the financial management, and what are the objectives of financial management. Means see, money is required to carry out business, so business activities, to run a business, to expand a business, for growth of business, for survival of business, for day-to-day operations. So money is required for our business, and proper management of money, it is very essential for the business. Okay, so what is the objectives of business we are completed within the last video. In today's video I am going to explain about what are the importance of financial management, or you can call the role of financial management, both are same. Okay, so what is the importance of financial management or role of financial management? So financial management means, now you got the thing. So proper management of money, whichever money you have for your business. So proper management of money, proper investment of that money, it is very important. Why it is important? So we will learn in this video. Otherwise you can call the role of financial management within the different activities of business. Okay, so first one, see, rather than the completion of syllabus, the clarification of concept, it is very important. So in this video I try to explain the things in Hindi also. Okay, so first one, they given the size and the composition of fixed asset of the business. The size and composition of fixed asset of the business. So what is mean fixed assets? So all of you know what is mean fixed assets. So which are the assets we can use for a longer period of time, or you can call the property of a business, which are fixed. Okay, working capital. So fixed assets, whatever assets required for a business, which are fixed, we are not replacing within a 2 year or 3 year. So which can be sustained for a longer period of time. So take an example, investment. So what money, what amount of capital you are invested within the fixed asset, so that is the fixed capital. Okay, so maybe take example, the money investment within the furnitures which are required for your business, money invested within the building of your business, money invested within the machineries of your business. So these are the fixed assets, machineries, building, plant, okay, furnitures, these are the fixed assets for your business. So decision, financial management means what? There you have to take a decision where you have to invest money and what amount of you have to invest money within the fixed assets or current assets, or you can call the working assets. Okay, so current assets or working assets means what? See, from that money is easy. So from that we can convert the things in terms of money easily. Okay, fixed assets are fixed, so we are not going to change always. So for a longer period of time it can be sustained for a business. So you have to take a decision how much amount of money you are going to invest within the fixed assets. Okay, so how you are going to invest? See, capital budgeting increase the size of fixed assets. Capital budgeting increase the size of fixed assets. Means what? Take an example. Suppose for your business you are required 2 or 3 machineries. Okay, 2 or 3 machineries you are required for your business. 3 machineries are required for your business. So what is the amount of this 3 machinery? Maybe 30 lakhs. Okay. So according to your current scenario of your business. So according to your business size, so these 3 machineries are okay. These 3 machineries are sufficient to run your business, and which carry the 30 lakhs rupees for purchasing.
But if you are taken a decision like that, I will invest the money within the fixed assets, means instead of purchasing for 3 machineries, I am going to purchase a 5 machineries for my business. So I have to pay the 15 lakh for my business within the current fixed assets. What I am telling, are you getting? Okay, means इसका मतलब क्या है? The size and composition of the business. The size of business small, medium and large. Okay, fixed assets means अभी आपको पता है, the investment made within the machinery, within the plant, buildings, furnitures. Okay, these are the fixed assets. Okay, so अभी जो आपका business है, उस business के लिए आपका 3 machineries में काम हो सकता है. Okay, so if you want to purchase a 3 machineries, आपको 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा within the fixed assets. Okay, but instead of purchasing of 3 machinery, आपने क्या डिसीजन लिया? I will purchase a 5 machineries for my business. मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हुआ फिक्स्ड असेट में? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड असेट में ज़्यादा हुआ, क्योंकि 5 मशीनरीज परचेज करना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा. आपका इन्वेस्टमेंट विद द फिक्स्ड असेट ज़्यादा है तो ज़्यादा लेना पड़ेगा. सो द डिसीजन रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट विद द फिक्स्ड असेट्स. सो यहाँ पे आपके पास कितना है? 60 लाख है. ओके, 60 लाख है. आपका बिजनेस का काम 3 मशीन लेके भी हो सकता है. ओके, मतलब आपका बिजनेस की साइज कितना है तो उसमें 3 मशीन इट इज सफिशिएंट. बट आपने क्या डिसीजन लिया? 5 मशीनरीज लेके मैं काम करूँगा तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आपने 30 लाख इन्वेस्ट किया तो आपके पास कितना बचा? 30 लाख बचा. सो विच मनी वी कैन यूज फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस. मतलब जो 30 लाख फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट में किया तो जो भी आपके पास 30 लाख है तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल ऑल्सो यू रिक्वायर. मतलब मशीनरीज लिया है तो उसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा और एम्प्लॉयज लगेंगे, उनको भी पेमेंट हमें देना पड़ेगा. सो व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल्स आर देयर नो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब आपके पास यहाँ पे पैसा ज़्यादा बचेगा इफ योर इन्वेस्टमेंट विद इन द इफ योर इन्वेस्टमेंट लेस विद इन द लेस फिक्स्ड असेट्स. बट आपने 5 मशीनरीज परचेज किया तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बट तब आपका वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? 10 लाख उतना ही रहेगा. ठीक है. सो मीन्स इन्वेस्टमेंट मेड विद इन द फिक्स्ड असेट्स, सो दैट इज ऑल्सो इफेक्टेड ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका असर, नहीं तो उसमें हमने कितना डिसाइड किया है फिक्स्ड असेट के लिए, मतलब बिल्डिंग के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, सो मशीनरीज पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेकेंड क्या दिया है? द क्वांटम ऑफ करंट असेट. क्वांटम मीन्स पार्ट, द पार्ट ऑफ करंट असेट. नाउ फिक्स्ड असेट, whichever the assets are fixed, we are not going to change. It is sustained for a longer period of time. ज़्यादा साल तक वो चीज़ें चल सकती हैं. सो इन्वेस्टमेंट उसमें किया तो दैट इज अ फिक्स्ड असेट. करंट असेट, सो छोटे छोटे चीज़ें जो भी डे टू डे लाइफ इट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो इन्वेस्टमेंट और पार्ट ऑफ करंट असेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू द कैश इन्वेंटरी, ब्रेकअप इनटू द कैश इन्वेंटरी and receivables. So what is the meaning of it? So I will explain this thing afterwards. What is the meaning of it? One thing, suppose, see here I am going to explain one thing. So whichever the raw materials are not easily available, see raw materials comes under the current assets, is it right? Machineries comes under the fixed assets. You purchase a 5 machinery, otherwise you purchase a 3 machinery, anything. So to run that machinery you require a raw material, you require employees, is it right? Okay, so current assets means you want to purchase a raw material. Okay, suppose your raw materials are easily available, so current assets are also less requirement will be current assets. Means what? For this month you purchase a raw material of 50K
50,000 रुपीज़ का आपने इस मंथ के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, तो सेकेंड मंथ के लिए पैसा फिर से रिलीज होगा, तो वहाँ पे 50 के आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब मंथली, अदरवाइज डे टू डे यू आर परचेजिंग द रॉ मटेरियल। ओके, आप डेली परचेज कर रहे हो, नहीं तो वीकली परचेज कर रहे हो, नहीं तो मंथली परचेज कर रहे हो। सो कैसा भी हो आपको उतना पैसा लगने वाला है। बट इफ योर रॉ मटेरियल्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, तो आप क्या करोगे, एक ही बार में जितना अवेलेबल रॉ मटेरियल है उतना एक ही बार में परचेज करके लाओ। लीव द थिंग्स एट योर होम। आपके घर में जो भी आपका मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग रहता है, ओके, आपके घर का एग्जाम्पल ले लो, जो भी आपके घर में आपका घर है, ओके, आपका घर के लिए जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, आपका कार है, ओके, फ्रिज, टीवी, एनीथिंग दैट कम्स अंडर द फिक्स्ड एसेट्स। सो उसमें कितना इन्वेस्ट करना है वो आपका डिसीजन है। इज इट राइट? सेकेंड थिंग, वॉट एवर द क्वांटम ऑफ करंट एसेट, मतलब जो भी डे टू डे लाइफ हमें लगने है, अभी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग, मतलब डेली मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग, जो भी सामान आपको मंथली लगता है वो शॉपिंग आपने करके लाया, ठीक है, और उसमें जो भी प्रोडक्ट आपने लाया है, भी सोप रहेगा, टूथपेस्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो उसमें कितना इन्वेस्ट करना है। अभी टूथपेस्ट खत्म होने के बाद हम दूसरा ला सकते हैं क्योंकि इट इज इजीली अवेलेबल, ओके, तो एक ही बार में सब कुछ लाना इट इज नॉट द राइट थिंग, बट एक ही बार में हम ज़्यादा लाते हैं क्योंकि कम प्राइस में मिलता है। सो सेम थिंग इफ यू कंपेयर विद द इंडस्ट्री, ओके, मतलब रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, ओके, अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो उस टाइम हम एक ही बार में वो रॉ मटेरियल ला सकते हैं, बट उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, सपोज आपका घर का ले लो, आपको सोप डेली लगता है, तो एक ही सोप परचेज करके लाया तो उसका चार्जेस 10 रुपीज़ है। तो इस मंथ में ओके करंट असेट में से हम 10 रुपये सोप के लिए दिए। इस मंथ में हमने 10 रुपीज़ सोप के लिए दी, साबुन के लिए दी, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू परचेज अ मोर सोप्स, मतलब आपने एक सोप लेने के बजाय आपने 5 सोप लिया, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस मंथ में 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब करंट असेट में भी आप कितना इन्वेस्ट करते हो दैट इज ऑल्सो इफेक्टेड ऑन द फाइनेंशियल डिसीजन। सो एक ही बार में 10 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की बजाय आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस मंथ का जो भी बजटिंग है, जो भी आपका घर का बजटिंग है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में आपने करंट असेट में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट मंथ उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यू परचेज द करंट असेट्स। सो नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा कम हो जाएगा। सो सेम थिंग मीन्स हाउ मच यू आर इन्वेस्टेड विद इन द फिक्स्ड असेट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड हाउ मच यू आर इन्वेस्टेड विद इन द करंट असेट, सो दैट इज ऑल्सो इफेक्टेड ऑन द फाइनेंशियल डिसीजन। Another thing, what is going to happen if the fixed assets are going to be increased, as well as it is going to be increase the working capital requirement. Okay, working capital requirement means आपका fixed asset बढ़ा तो आपका working capital भी बढ़ सकता है। How? So just I told here 3 machineries are sufficient for your business, but instead of that you are purchasing 5 machineries. बट द इन्वेस्टमेंट विद इन द फिक्स्ड असेट इंक्रीज, मतलब 3 मशीनरी से आपका काम हो सकता था, बट आपने कितना मशीनरी परचेज किया? 5 मशीनरी परचेज किया। तो 5 मशीनरीज इफ यू आर परचेज, तो आपका फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। सो इफ द फिक्स्ड असेट इंक्रीज, मतलब फिक्स्ड असेट में आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके वर्किंग कैपिटल में भी आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाउ? क्योंकि ज़्यादा मशीनरीज लिया तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा मशीनरीज है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्कर्स लगेंगे। सो ज़्यादा रॉ मटेरियल लेने के लिए वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए पेमेंट देने के लिए, उनका सैलरी देने के लिए वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि इफ यू इन्वेस्टेड मोर विद इन द फिक्स्ड असेट्स, सो वर्किंग कैपिटल इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। सो दैट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, सो टेक योर एग्जांपल एट होम। फिक्स्ड
फिक्स्ड असेट, आपके घर के काम के लिए आपने ज़्यादा होम अप्लायंसेस, आपने ज़्यादा होम अप्लायंसेस परचेज किया, मतलब टीवी भी लिया, फ्रिज भी लिया, वॉशिंग मशीन भी लिया, डिश वॉशर भी लिया, मीन्स दिस आर द मशीनरी और इन्वेस्टेड विद इन द फिक्स्ड असेट। सो उतना आपका होम अप्लायंस है तो आपको डे मतलब मंथली जो भी आपका लाइट बिल आएगा वो ज़्यादा ही होगा, मतलब वर्किंग कैपिटल आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज ड्यू टू द फिक्स्ड assets. So that is the second point. Next point, what is the next point? The amount of short term and long term funds to be used. The amount of short term and long term funds to be used. The amount of short term and long term funds to be used. So there are two kinds of funds. One is the short term fund, means easily available, the funds are easily available, otherwise within the shorter period of time, for shorter period of time the funds are available, means if you want the money for only for this month, so short term fund, for 1 month only you require this amount, or long term means for up to 1 year you want that money. Okay, so the amount of funds that comes in the short term means within a shorter period of time you are required, and for long term, longer period of time you are required. Okay, so how it is affected on the financial decision? So decision related to the composition of long term and short term funds depending upon the profitability and or liquidity goals. Liquidity goals means what are the things? Suppose if you arrange the funds, liquidity means the funds, otherwise whatever money easily available for your business, the money easily available for your business means what? Take your home example, आपका घर के एग्जाम्पल ले लो, आप घर चला रहे, ठीक है, तो होम इज लाइक अ बिजनेस, ओके, और आपके लिए पैसा लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के लिए आपको पैसा लगने वाला है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म, और डे टू डे लाइफ जो भी पैसा लगने वाला है इजीली अवेलेबल है, मतलब आपकी सेविंग्स रहेगी, ओके, सेविंग्स कुछ भी रहेगी, मतलब आपने एफडी रखा, कुछ भी रखा, आरडी कर रहे, तो द फंड्स इजीली अवेलेबल, जब भी आपको पैसा चाहिए तो उसमें से हम निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट, आपका जो भी सेविंग अकाउंट है वो दैट इज द लिक्विडिटी गोल्स, मतलब इजीली अवेलेबल, आपको जब भी पैसा लगेगा पैसा इजीली अवेलेबल होगा। लॉन्ग टर्म लोन मतलब एक बार आपने लोन लिया है बैंक से तो 1 ईयर तक आपको वो पे करना पड़ेगा। अभी लॉन्ग टर्म गोल का मीनिंग क्या है, मतलब आपका बिजनेस के लिए 1 साल तक पैसा लगने वाला है, तो आपने क्या किया, लोन लिया, ठीक है, आपने लोन लिया है 1 साल तक लिया है, तो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वहाँ पे, ओके, तो इंटरेस्ट रेट कहाँ से पे करोगे, जो भी आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट आएगा वहाँ से आप वो लोन का रेट पे करोगे, नहीं तो लोन चुकाओगे इंटरेस्ट रेट से। सो जो भी आपका लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स है, विच इज द लॉन्ग टर्म फंड्स, सो उसके लिए हमको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, अदरवाइज प्लस कैपिटल अमाउंट, तो वो कहाँ से हम देंगे, जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आएगा उसमें से हम इंटरेस्ट रेट देंगे, सो इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी गोल्स ऑल्सो, मतलब फंड्स जो भी इजीली अवेलेबल है तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, मतलब अभी मुझे पैसा चाहिए, हाँ, सेविंग अकाउंट में से निकालो, ओके, तो इट इज़ अफेक्टेड ऑन द लिक्विडिटी गोल्स, जो भी इजीली फंड्स अवेलेबल है वो भी सेविंग नहीं होता, लिक्विडिटी अकाउंट लिक्विडिटी गोल्स में वो पैसा चला जाता है, मतलब आपको शॉर्ट टर्म पैसा कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म कितना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इफेक्टेड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लिया तो आपके प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और इजीली अवेलेबल आपको चाहिए तो आपका लिक्विड जो भी सेविंग है उसमें से निकालने पड़ेंगे, तो सेविंग्स तो नहीं देगा, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू द डेब्ट एंड इक्विटी। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। सो फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब गोल्स, साल तक हमें पैसा चाहिए, एक बार हमने लोन लिया है, what we are taken a loan from a bank, from a debentures, so 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल, that is a long term, okay, long term period of time,
ओके, मतलब 3-4 साल तक आप वो लोन चुका सकते हो, दैट इज लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल से ज़्यादा साल तक वो लोन आप चुका सकते हो। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो जाओ डेब्ट के लिए, सेकेंड जाओ इक्विटी के लिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्ट? यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक, अदरवाइज फ्रॉम अ डिबेंचर्स। डेब्ट कर्जा लेना, लोन लेना, so that is the debt, one option for longer period of time. Second option, equity. Equity means what? Equity means owner's fund. Which are the owner's fund? Maybe the owner's saving, otherwise shareholders funds also comes under the equity. So long term के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक तो लोन ले लो, नहीं तो मैक्सिमाइज द शेयरहोल्डर्स, नहीं तो शेयरहोल्डर्स से पैसा ले लो। So whatever the money of shareholders, otherwise shareholders are like owners. So whatever the money of owners, that comes under the equity. Whatever the money you are borrowing from outside, from bank, from debentures, so that is the debt. So for debt you have to pay the interest rate. लोन लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा. That is, if you take a debt, if it is a loan, you have to pay the debts. Okay, means interest rate you have to pay. If equity amount is there, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर से पैसा लिया तो आपको पर ईयर डिविडेंड देना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। मीन्स इन बोथ केस यू हैव टू पे द थिंग्स, हियर इंटरेस्ट एंड हियर यू हैव टू पे द डिविडेंड्स। ओके, सो डिसीजन, सो फाइनेंशियल डिसीजन ऑन इफेक्टेड ऑफ दिस, if you want to choose this thing, it have some advantage, disadvantage. If you want to choose this thing, you have some advantage and disadvantage. And last one is last importance of financial management is all items in profit and loss account, P&L account, interest or expenses. So within it is affected on profit or loss account. So it may be the items comes under the interest, expenses or depreciation cost. Okay, so mind you have heard this name within the accounts. Okay, so if the debt increases, इसका मतलब क्या है? ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स आएंगे, इट में भी द इंटरेस्ट रेट, आपने जो भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा, नहीं तो एक्सपेंसेस, जो भी अदर एक्सपेंसेस आते हैं, अदरवाइज डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ योर। सो व्हाट इज द डिप्रिसिएशन कॉस्ट मीन्स व्हाट? टेक एग्जांपल, आपने फिक्स्ड असेट कुछ भी परचेज किया है, तो इस साल परचेज किया, तो अभी 2 साल के बाद फिक्स्ड असेट जस्ट वर्किंग लाइक अ प्रॉपर्टी। सो 2 साल के बाद अभी सीधे का एग्जाम्पल, आपने एक फिक्स्ड असेट परचेज किया, उसका कीमत है 10 लाख। ओके, वो 2 साल के बाद आप मार्केट में वो फिर से दूसरों को दिया, सेल किया, तो 10 लाख तो नहीं आएंगे, उससे कम पैसा आपको आएगा। मतलब यहाँ पे 2 लाख डिप्रिसिएशन कॉस्ट है। मतलब whatever you purchase the fixed asset, if you are reselling to another person or second hand if you are selling to another one, so the cost is of that fixed asset, it is going to be decreased, and for that we can call the depreciation. Okay, so if the debts are increased, the interest rate also going to be increased. Means आपने ज़्यादा लोन लिया आपके बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, तो ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहेगा, आपको पे करना पड़ेगा, और प्रॉफिट में से ही पे करना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू गो फॉर द इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर से ज़्यादा पैसा लिया है, तो आपको उनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा। मतलब जो भी इंटरेस्ट है, एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगा। So these are the importance of financial management. So I hope you got the clear concept about what are the importance of financial management. If you have any doubt, I will clarify your doubts in live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.